Amen. You can be seated, please. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर. थैंक यू. But there are many new guests today. पर बहुत से आज अतिथि आए हैं. But the members of this house, you have to show them how you receive the word every Sunday. पर जो इस घर के, इस परिवार के सदस्य हैं, आपको दिखाना होगा कैसे आप वचन ग्रहण करते हैं रविवार को. Are you ready? तैयार हैं? I'm going to talk about a God of humble beginnings. क्योंकि मैं बात करूंगा उस परमेश्वर के बारे में जो नम्र शुरुआत से शुरू करता है. The Bible says, do not despise humble beginnings. बाइबल कहती है नम्र शुरुआत को हल्का मत समझ. Amen. All of you have dreams. आप सबके सपने हैं. All of you, God has given you promises. परमेश्वर ने आपको वायदे भी दिए हैं. But the thing with the way God works is, लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका कुछ ऐसा God never gives you a forest, He gives you a seed. है. वो कभी भी आपको जंगल नहीं देता, आपको बीज देता है. And when you mix faithfulness with that seed has the power to become a mighty forest in Jesus' name. और जब आप उसमें विश्वास योग्यता मिला देते हैं तो उस बीज में क्षमता है एक महान जंगल बन जाने की. Amen. But I'm telling you, there is no one here whom God has not given a seed. पर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके परमेश्वर ने बीज नहीं दिया. But majority people despise seeds. लेकिन अधिकतर लोग बीज को तुच्छ देखते हैं. Because they look ordinary. क्योंकि वो दिखने में साधारण होते हैं. They look so common. वो सामान्य होते हैं. They don't look flashy. Like what you're doing is you are comparing your seed with someone's forest. उसमें कुछ भी ऐसा चमचमाता हुआ नहीं है. आप गलती ये कर रहे हैं कि अपने बीज की तुलना किसी के जंगल से कर रहे हैं. Amen. Amen. The key is to stay faithful in your season of seed. सफलता की कुंजी ये है कि अपने बीज के समय में विश्वास योग्य बने रहो. Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, be faithful in the seed season. अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी बीज के समय में विश्वास योग्य बने रहो. How you handle your seed will determine the harvest you're going to get. आप अपने बीज को किस तरह से संभालोगे, उसका क्या करोगे, उस पर निर्भर करता है कि कैसी फसल आप काटोगे. Amen. I want to show you something. Let's see Luke 1:35. लूका 1 उसका 35 पढ़ते हैं. Luke 1:35. And an angel has come to talk to a young girl. एक स्वर्गदूत आया है एक जवान लड़की से बात करने के लिए. Her name is Mary. उसका नाम मरियम है. Through which we know that Jesus, our Lord and Savior, the great God, Lord Jesus Christ, came into this earth. जिसके द्वारा हम जानते हैं वो महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया. But look at the conversation. The angel has come with a message, with a word. लेकिन इस बातचीत को जरा देखिए कि एक स्वर्गदूत एक संदेश, एक वचन के साथ आया है. You don't need a sponsor. आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए. You don't need a connection. आपको किसी के साथ कनेक्शन नहीं चाहिए. All you need is a word. आपको सिर्फ वचन की आवश्यकता है. If you can get one word of the Lord, it has the power to change what is impossible and make it possible. अगर परमेश्वर से एक वचन आपको मिल गया तो उस एक वचन में यह ताकत है जो आपके लिए असंभव है उसको संभव कर दे. Amen. Look here. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया और कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. When angel spoke to Mary, the first thing he said is, you are highly favored among women. जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात किया तो सबसे पहली बात कही, महिलाओं में, स्त्रियों में तेरा बड़ा आदर है. You are highly favored. तुझ पर बहुत तरफदारी है स्त्रियों में. And then he gave her a word from the Lord. और फिर उसने परमेश्वर की ओर से उसको वचन दिया. And he said the Holy Spirit is going to come upon you. और ये कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर आ जाएगा. And the power of Most High will overshadow you. और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया कर लेगी. And you will give birth to a son.
और तू एक बेटे को जन्म देगी who will be God in flesh. जो कि शरीर में परमेश्वर होगा। Now, awesome. But अद्भुत है। now, look लेकिन what happens after the word. अब देखो वचन के बाद क्या होता है। What I'm telling you is मैं आपको ये बता रहा हूं that you can never serve God in your comfort zone. कि आप आराम में कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हो। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा, You can never serve God in your comfort zone. आप अपने आरामदेह जगह में कभी परमेश्वर की What सेवा did the नहीं कर angel सकते। tell Mary? स्वर्गदूत ने क्या कहा था मरियम से That you are highly favored among women. कि स्त्रियों में सबसे ज्यादा तरफदारी तूने पाई है। Amen? Now look what happens. अब देखो क्या होता है। Now she gets pregnant. अब वो गर्भ धारित करती है, But before that, लेकिन उससे पहले now the word sounds impossible. वो वचन सुनने में असंभव लगता है। If you say you got a word from God which you think you can fulfill in your own strength, that's not God, that's your ambition. अगर आपको लगता है कि आपको एक ऐसा वचन परमेश्वर से मिला है जो आप अपनी क्षमता से अपने बल से पूरा कर सकते हो, तो वो परमेश्वर की ओर से वचन When नहीं God है। gives you a dream, He does not give you a dream according to your strength. God gives you a dream according to His strength. जब परमेश्वर आपको एक सपना देता है तो आपकी क्षमता के अनुसार, आपके बल के अनुसार नहीं, अपने बल के अनुसार देता है। Amen? He says He blesses us not according to our riches, He blesses us according to His riches. वो हमें हमारी धन संपत्ति के अनुसार आशीष नहीं, अपने महिमा के खजाने के अनुसार आशीष देता है। So Mary could not comprehend what this angel is saying. तो मरियम समझ नहीं सकी कि ये स्वर्गदूत कह क्या रहा है। But she said one thing which I love, and I say, Lord, I want to be like this little girl all my life. लेकिन उसने एक बात कही जिससे मुझे बड़ा प्यार है, और मैंने कहा प्रभु मैं इस छोटी लड़की की तरह जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। He said, how can that be? I've never known a man. उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। But let it be done unto me as per your word. लेकिन फिर भी मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो। You need to come to a place. You don't have to find out, Lord, how will it happen? आपको पता लगाने की जरूरत नहीं कि प्रभु कैसे होगा, क्या करोगे, कैसे करोगे। Finding how is not your job. Obeying it is your job. कैसे होगा पता लगाना आपका काम नहीं है, जो वचन दिया गया उसको मानना आपका काम है। She said, let it be done unto me as per your word. उसने कहा मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो जाए। Today, what is the promise God has given you? आज क्या वायदा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। You're trying to figure out how will I bring it to pass. आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे मैं इसको पूरा करूं। No, just tell him, Lord, let it be done unto me as per your word. नहीं, उससे कहो प्रभु मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो जाए। Amen. And the moment Mary came in agreement to the word, the manifestation started. जिस घड़ी मरियम उस वचन के साथ सहमत हो गई, उसका सबूत, उसका प्रगटीकरण शुरू हो गया। Imagine, Mary got the opportunity that no other human being will ever get. She gave her womb to God. कल्पना करें मरियम को वो मौका मिला जो किसी मनुष्य को कभी नहीं मिलेगा, उसने अपना गर्भ परमेश्वर को दिया। But look what happens. The moment she said yes, लेकिन देखो क्या हुआ, जिस घड़ी उसने हाँ कहा, humiliation starts. बेइज्जती होना शुरू हो गया उसकी। What do you think? Jews would have believed that she has conceived through the Holy Spirit? आपको क्या लगता है, यहूदियों लोगों ने मान दिया होगा कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा The Bible says even Joseph, who was a righteous man, now he's thinking, I need to break my engagement with Mary. और बाइबल बताती है यूसुफ जो एक धर्मी व्यक्ति था, वो भी कल्पना कर रहा था कि कैसे अपनी मंगनी वो मरियम से तोड़ दे। Why? क्यों? Because even he didn't believe. क्योंकि उसने भी विश्वास नहीं किया था। When God gives you a dream that is God-sized, no one else is going to believe at first. जब परमेश्वर आपको वो सपना देगा जो उसके साइज का है, तो पहले कोई भी विश्वास नहीं करेगा। People are going to mock you. लोग मजाक उड़ाएंगे, Call you names. आपको नामों से बुलाएंगे। Now look at this. अब Now देखो। Mary gets pregnant, अब मरियम गर्भ धारित करती है, and all the women here, mothers here who have gone through pregnancy and are mothers today, you know
pregnancy is messy. और सारी महिलाएं, सारी माएँ जिन्होंने बच्चा पैदा किया, उनको पता है कि कैसे दिक्कत होती है, समस्या होती है। It's not comfortable. आराम से नहीं होता। Pregnancy is not comfortable. प्रेग्नेंट होना आराम की बात नहीं है। Any woman who just desires comfort will never be pregnant. एक औरत जिसको आराम चाहिए वो गर्भ धारित करना ही नहीं चाहेगी। Any man or woman who wants to be pregnant cannot carry a great destiny in them. एक पुरुष और एक महिला जो परमेश्वर के वचन का गर्भ धारित नहीं करना चाहता, वो आराम में रहना चाहता है, वो गर्भ धारित नहीं कर सकता। देखो, YouTube चैनल तो आप बना लेते हो, फिर कहाँ अटक जाते हो कि इसे ग्रो कैसे करें, फिर YouTube पे जाते हो, सर्च करते हो। नहीं करना चाहता, वो आराम में रहना चाहता है, वो गर्भ धारित नहीं कर सकता। And then God in flesh is born. और फिर परमेश्वर जो देह में आता है उसका जन्म होता है। Jesus was all human. यीशु पूरी तरह से मनुष्य था। But do you know what? पर पता है क्या? He looks like a normal baby. वो देखने में तो एक सामान्य बच्चे जैसा है। Mary would have imagined he would have like fluorescence light coming out of him. मरियम ने शायद कल्पना की हो कि उसमें से अलग-अलग लाइट निकल रही होगी। Because he is God in flesh. क्योंकि वो तो परमेश्वर है शरीर। But looks ordinary. लेकिन देखने में तो बड़ा ही साधारण है। He's doing everything all the other small kids do. वो सब कर रहा है जो बाकी दूसरे छोटे बच्चे करते हैं। You know what I mean? आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 1 year, 2 years. 1 साल, 2 साल। Everything looks normal. सब कुछ सामान्य दिखता है। Angel said that this will be Son of God. स्वर्गदूत ने तो कहा था ये परमेश्वर का बेटा होगा। He's just like any other kid. ये तो किसी दूसरे बच्चे की तरह है। Wait, रुको, wait. रुको। If God gave you a word, अगर परमेश्वर ने तुम्हें वचन दिया है it will come to pass. तो वो पूरा होकर रहेगा। Amen. There is always a preparation time. हमेशा तैयारी का समय होता है एक। That's why, you know, Mary was faithful in taking care of Lord Jesus. आप जानते हैं मरियम विश्वास योग्य थी यीशु मसीह की देखभाल करने में। Even though हालांकि that caused her great humiliation. उस वजह से उसकी बड़ी बेइज्जती सही उसने। That's why in the kingdom of God she has honor. इसीलिए परमेश्वर के राज्य में उसका बड़ा आदर है। Today, आज when you believe in Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते your हैं, relatives are going to mock you. आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, Society is going to call you names. समाज आपको अलग नामों से बुलाएगा। What will you do? क्या करोगे? Will you give up on him? हार मान जाओगे उस पे? Will you try to be a secret believer? एक छुपे हुए विश्वासी बनोगे? No. नहीं। You have to shout out, I know true God. His name is Lord Jesus Christ of Nazareth, and there is no other name by which mankind can be saved. आपको चिल्लाकर कहना होगा, मैं सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम दिया ही नहीं गया जिससे मनुष्य जाति उद्धार पा सके। Amen. आमेन। You know, Mary got a physical privilege of carrying Jesus. Every believer gets the spiritual privilege of carrying Jesus in them. मरियम को यह सौभाग्य मिला कि शरीर में मसीह यीशु को ग्रहण कर सके। हर एक विश्वासी को यह सौभाग्य मिला है कि आत्मा में मसीह यीशु को ग्रहण कर सके। And like Mary had to go through humiliation, people are going to call you names, they're going to mock you, say things about you, but that shouldn't bother because you know what you are carrying in you. और ठीक जैसे मरियम को बेइज्जती सहनी पड़ी, आपको भी लोग अलग अलग नामों से बुलाएंगे, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं हो, परवाह ना हो, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या लेकर चल रहे हैं अंदर। Amen. Faithfulness in the waiting season. इंतजार के सीजन में, इंतजार के समय में विश्वास योग्य बने रहो। That's where many people give it. When the dream that God gave them, when the vision God gave them looks ordinary. तब बहुत से लोग हार मान लेते हैं जब इंतजार का समय होता है, जब वो दर्शन, जो स्वप्न परमेश्वर ने किसी को दिया, वो दिखने में बड़ा साधारण दिखे। And it looks ordinary. दिखने में बड़ा साधारण, सामान्य दिखे। That is the time you stay faithful. वही समय है कि आप विश्वास योग्य बने रहो। You know,
it's not the clever and the brightest in the kingdom that are promoted. राज्य में जो सबसे चतुर है, जो सबसे ज्यादा सियाना है, वो नहीं उन्नति पाता, But it's the faithful. लेकिन जो विश्वास योग्य है वो पाता है. विश्वास योग्य. Amen. आमेन. Many times people think that I'm the smartest man. बहुत- अरे मेरे जैसा शार्प बंदा नहीं है कोई. प्रभु कहे तेरी जरूरत नहीं है मुझे, तो बहुत शार्प है मेरे लिए, Come on. ज्यादा शार्प है तू. Come on. अरे गेटिंग? वो कहता है मुझे फेथफुल लोगों की जरूरत है. Amen. फेथफुल. Amen. Never trust in your ability. कभी भी अपनी क्षमता पर भरोसा मत कर बैठना. परमेश्वर ने गधे के द्वारा बात करी. Amen. जो गधे फेथफुल हैं किंगडम में, वो घोड़ों से भी तेज दौड़ते हैं. और जो खुद को घोड़ा समझते हैं, वो गधों से भी हल्के चलते हैं. Amen. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप नहीं समझ रहे तो आप घोड़ा हैं. Amen. The goal is not to become the sharpest, the brightest. The goal is to stay faithful. Say faithful. उद्देश्य सबसे चतुर, सबसे सियाना बनना नहीं है. उद्देश्य विश्वास योग्य रहना है. Those who maintain faithfulness, they are the ones who reap fruitfulness. जो लोग विश्वास योग्य बने रहते हैं, वो ही लोग हैं जो फलवंत होते जाते हैं. अगर आप परमेश्वर के राज्य में फ्रूटफुल लोगों को देखते हो, जिनके जीवन में बहुत सारे फल हैं, ये वो लोग हैं जो विश्वास योग्य रहे. एक भी बंदा आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेगा जो फ्रूटफुल है मगर जो फेथफुल नहीं है. नॉट पॉसिबल. Come on. Amen. Tell your neighbor. पड़ोसी से कहो, बोलो remain faithful. विश्वास योग्य बने रहो. कब तक पास्टर जी? जब तक हमें वो गाड़ी ना मिल जाए, बड़ा 5 बेडरूम घर ना मिल जाए. आखिरी सांस तक उस परमेश्वर ने, जिसने आपको बुलाया, आपका नाम लेकर आपके पापों को क्षमा किया, अपनी आत्मा से भरा, आखिरी सांस तक हमें उस परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहना है. आमेन. Faithful. विश्वास- Faithfulness is the key. विश्वास योग्यता ही कुंजी है. अगर कल को प्रभु मुझे बोले इस चर्च को छोड़ कहीं और जा, मैं बोलूं नहीं प्रभु, मैं तो बढ़ा रहा हूं इसको, और बढ़ भी जाए, मगर अंत में जब मैं उसके सामने खड़ा हूंगा, आई एम एन अनफेथफुल सर्वेंट. मैं एक अविश्वासीय दास ठहरा जिसने वो नहीं किया जो उसके मालिक ने बोला. सक्सेस मिनिस्ट्री में बड़ी चीजें करना नहीं है. सक्सेस मिनिस्ट्री में जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया उसके साथ वफादार रहना और उसके साथ आज्ञाकारी रहना है. Amen. That's the secret. यही रहस्य है. Faithfulness. विश्वास योग्यता. God is not looking for the sharpest. परमेश्वर सबसे चतुर को नहीं ढूंढ रहा है, He's looking for the faithful. वो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है. Think about this. परमेश्वर ने मनुष्य रूप धरा, पृथ्वी पे आया. वो कहीं पे भी, वो जेरूसलेम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जा सकता था, जहां पढ़े लिखे स्क्राइब्स, फैरिसी, व्यवस्था के ज्ञानी थे, जिनको पूरा तोरा मुंह पे था. उनके पास नहीं गया. मछुआरों के पास, चुंगी लेने वालों के पास, वैश्याओं के पास, उनके पास गया. थैंक यू फॉर दिस थंडरिंग साइलेंस. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. हालेलुया. अब let's see the scripture. ये वचन देखते हैं. Luke 16:10. लूका 16 उसका 10. Luke 16:10. The one who faithfully manages the little he has been given will be what? Come on guys. Are you here? क्या हो गया? धुआं ज्यादा हो गया? जिंदा हैं आप लोग? जो लोग जिंदा हैं जोर से हालेलुया बोलिए. चलो, प्रेज गॉड. बोला कहीं जहरीली गैस तो नहीं छोड़ दी इन्होंने? आप सब एकदम शांत हो.
Let's try it again. दोबारा ट्राई करते हैं. The one who faithfully manages the little he has been given will be. Guys, put it in TPT. Okay, that's the problem. I'm sorry. Version mismatch हो गया. Okay, all right. Okay. Let's pray for the media team. प्रभु जी, थोड़ा तेजी दें आप इन्हें. चलो करते हैं प्रार्थना. ओके, मैं पढ़ ही देता हूं. The one who faithfully manages the little he has been given will be promoted and trusted with greater responsibilities. वो जो विश्वास योग्यता से भंडारी होगा उन बातों का जो उसको भरोसा करके दी गई हैं, उसको ऊंचा उठाया जाएगा, तरक्की दी जाएगी और जिम्मेदारी दी जाएगी. यानी परमेश्वर के राज्य में आपको परखा जाता है थोड़ा सा देके. परमेश्वर कभी आपको बड़ा नहीं देगा एक साथ, कभी नहीं देगा. इम्पॉसिबल है, वो काम नहीं करता ऐसे. वो आपको थोड़ा देगा. ही इज अ गॉड ऑफ सीड. एक बीज देगा और उसके बाद देखेगा ये बंदा क्या करता है उसका. आप जानते हैं मेरी सेवकाई की शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी सेवकाई की शुरुआत हुई थी एक पोंछे के कपड़े और एक बाल्टी से. That was the start of this ministry. This ministry started ये सेवकाई शुरू हुई with a mop and a bucket of water. एक पोछे और बाल्टी के पानी से. जब मैं कलीसिया जाता था, मेरे पास्टर ने एक दिन कहा कि चर्च में सुबह हमें कोई चाहिए जो चर्च साफ कर सके. मैं और एक और मेरा दोस्त था, हम लोग सुबह 6 बजे जाते थे. जब कोई नहीं होता था, खोलते थे चर्च, पोछा मारते थे, चेयर साफ करते थे. ये हमारी पहली सेवकाई थी. दिस वॉज द फर्स्ट मिनिस्ट्री. सेवकाई ये नहीं है, ये लाइट, ये तो केवल संडे को होता है. आप जानते हैं आप यहां इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहां सबसे बड़ी एलईडी लगी है. आप यहां इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको यहां लेके आ रहा है. Amen. Amen. So दिल को परखा जाएगा पहले. जो परमेश्वर तोड़े हमें देगा, थोड़ा सा दिया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि ये व्यक्ति उसका क्या करता है. ये थोड़ा, सबको बड़ा चाहिए, सबको एकदम चाहिए और सबको बड़ा चाहिए. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मगर बहुत कम लोग हैं जब थोड़ा सा उनको मिलता है ना तो वो उसमें भी विश्वास योग्य रहते. द सीक्रेट इज टू स्टे फेथफुल इन द लिटिल. रहस्य है उस थोड़े में विश्वास योग्य बने रहना. उस टाइम लोग कहते हैं अरे ये क्या है, तो बड़ा तुच्छ सा लगता है, ये क्या छोटा सा. मैं पास्टर कहता, पास्टर मैं रॉक बैंड में था, नॉर्थ इंडिया में, हमने अवार्ड भी जीते ते, लंबे लंबे बाल थे मेरे, रॉक बैंड में था. मगर जब चर्च गया तो क्या दिया पास्टर ने? पोछे की बाल्टी. थिंक अबाउट दैट. मेरा पास्टर, आपको पता नहीं है नॉर्थ इंडिया का बेस्ट रॉक बैंड का अवार्ड मिला है हमें, आप पोछे की बाल्टी दे रहे हो मुझे. मगर मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मुझे पता था ये मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूं. प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पिता जो सीक्रेट में देखता है, गुप्त में देख, जब कोई नहीं देखता तो वो देखता है. कुंजी है जो कुछ हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि लोग देखें या हमारा पिता जो गुप्त में है वो देखे. जब वो जो गुप्त में है वो देखता है तो ओपनली रिवॉर्ड देता है यीशु मसीह के नाम में. आमीन. 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 So, okay, sorry, Pastor Sam. Okay,
All right, hallelujah. Even मेरा इंग्लिश में प्रचार करना वह एक परमेश्वर को ओबे करना था. Even me preaching in English was in my obedience to the Lord. कलीसिया में 10 लोग थे There were 10 people in the church. और प्रभु ने एक दिन मुझसे बोला मैं चाहता हूँ तू मेरा वचन इंग्लिश में प्रचार करेगा. And one day the Lord said, I want you to preach my word in मैंने English. कहा प्रभु पहले तो मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं I है, said, Lord, firstly, I don't know such good English. ऊपर से इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक करता हूँ Then I make so many grammatical mistakes. और बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं इंग्लिश में प्रचार And करूँ. I would not have any confidence to preach in English. प्रभु ने कहा, The Lord said फिर से वही बोला, the same thing. मेरा वचन इंग्लिश में प्रचार कर. Preach my word in English. यस सर. ठीक है सर. अगले संडे आप समझ सकते हैं मैं खड़ा हूँ, Can you imagine next Sunday I'm standing in the किसी को church? कुछ नहीं पता Nobody knows anything. और मैं कह रहा हूँ लेट्स ओपन आवर बाइबल्स टू द बुक ऑफ रोमन्स. और मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ कि अपनी किताबें लोग मुझे हम देख रहे हैं. रोमे में खोलें. और ये लोग क्या हो गया इसको, इंग्लिश पिक्चर देख ली रात को. people are thinking what has happened? Has he watched an English movie last night? और आगे एक बंदा बैठा है वो मेरे को देख के कर रहा है. There's a guy in the front row and he's looking at me and इतना मुश्किल था मेरे लिए परमेश्वर को ओबे करना. it was so difficult for me to obey God's instructions. और उसके अगले संडे Then the next Sunday, एक अमेरिकन भाई हमारे आए प्रचार करने के लिए, An जो American- शुद्ध हिंदी में प्रचार किया जिन्होंने. an American came to our church the next Sunday and he preached in pure Hindi. आपका ओबीडियंस परखा जाएगा. Your obedience will be tested. सो उन्होंने हिंदी में प्रचार किया. So he preached in Hindi. वही बंदा जो आगे ऐसे कर रहा था ना, The same guy who was sitting like this, वो मेरे in पास front, आया. he came to me. कह रहा एक बात बताओ, He said, tell me one thing. वो अमरीकी होके That American guy हिंदी में प्रचार कर सकते हैं can preach in और Hindi. आप हिंदुस्तानी होके You are an Indian. आप क्यों इंग्लिश में प्रचार कर रहे Why हो? are you preaching in English?